Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Hello, sir. Okay. Hello. हेलो सर. Yes. सर हम लोग को पीडीएफ एलडी का 3 नहीं मिला है सर. कौन वाला बोलो? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड. Syllabus already have completed. ठीक है. Equation syllabus already completed according to your syllabus. So next we start the second model, that is the vector calculus, right? So what is the vector? Tell me, anyone student? What is vector? Anyone student? The quantity which have magnitude and direction both. Yes. For example, Acceleration, force, or Force. both. okay. What is scalar? Anyone student? What is scalar? सर Anyone? जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है. हाँ? सर जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड. Only for magnitude, na? यस सर. Only for magnitude, which is called scalar. A quantity which is completely specified by its magnitude. That is called scalar. For example, length, time, mass. Clear or not? Yes, sir. Okay. Example of vector is weight, force. Clear or not? Yes, sir. Vector. For example of vector, weight, force, displacement, velocity. So, we start scalar and vector point function, right? So first we start the field. What is field? If a function is defined in any region of space, for every point of the region, then this region is called field. Okay. Second is scalar point function. A function phi x y z is called a scalar point function if it associates a scalar with every point in space. The temperature distribution in heated body, right, density of a body, and potential due to the gravity are the example of scalar point function. These three examples have scalar point function. First one is temperature distribution in heated body. Second is density of a body. Third one is potential due to the gravity. That is scalar point function. इधर है? Second is vector point function. What is vector point function? If a function fxyz defines a vector at every point of a region, then fxyz is called a vector point function. The velocity of a moving fluid, gravitational force are the example of vector point function. Okay, vector point function only for two examples have written.
फर्स्ट वन इज velocity of a moving fluid, second is gravitational force, right? क्लियर है कि नहीं डेफिनेशन? सर Yes, पॉइंट फंक्शन नहीं समझ में आ रहा। हाँ, नेक्स्ट वन इज वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर del, right? That is del operator have defined. सर पॉइंट फंक्शन क्या है सर? पॉइंट हाँ? फंक्शन क्या है सर? तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सर पॉइंट फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है। पॉइंट फंक्शन, ये तो डेफिनेशन है, ठीक है। एग्जांपल पे आओ। द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल, दैट इज, ये डेल्टा दिया हुआ है, ठीक है। द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल इज डिनोटेड बाय डेल, इट इज डिफाइंड एज डेल इक्वल टू I delta by delta x plus j delta by delta y plus k delta by delta z, ठीक है। ये डिफाइन किया हुआ है। ये जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर का डिफाइंड बाय डेल, डेल ऑपरेटर से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। डेल डिफाइंड एज I delta by delta x, delta j delta by delta y, k delta by delta z, means that three independent variable have, that is x, y, z, and derivative with respect, derivative, partial derivative have defined, partial derivative have defined. What is gradient? What is gradient? It is useful in defining gradient, divergent and curl. Actually, according to a syllabus, so we define what is gradient. The gradient of a scalar point function phi, इसको phi से डिफाइन करते हैं। phi क्या? phi is a scalar point function, ठीक है। The gradient of a scalar point function phi is defined by the del phi and is written as grade phi, grade phi. The grade phi is equal to del phi, देख सकते हैं। The del we have I delta by delta x, j delta by delta y, k delta by delta z and phi। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? I del phi by del x, j del phi by del y, k del phi by del z। ग्रेड phi जो बन गया तुम्हारा, ग्रेड phi जो बन गया, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी में? इसलिए है क्योंकि I j k ऑलरेडी है, ठीक है। स्केलर फंक्शन, स्केलर क्वांटिटी जो बनेगा उसमें वेक्टर, उसमें डायरेक्शन नहीं रहेगा, दैट इज I j k नहीं रहेगा स्केलर में, ठीक है कि नहीं है? ग्रेडियंट किस लिए यूज करते हैं सर? ग्रेडियंट क्यों यूज करते हैं? यस सर। अब तुम लोग बोलो डेरिवेटिव क्यों यूज करते हैं? बड़े फंक्शन को डिवाइड करके स्मॉल पार्ट में लाने के लिए। हाँ, तो दैट इज ग्रेडियंट पे वही चीज है, ग्रेडियंट पे वही चीज है। देखो जो एक स्केलर दिया हुआ है, ग्रेडियंट जो बोल रहा है, ग्रेडियंट को हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ग्रेडियंट यूज करते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए ग्रेडियंट का यूज करते हैं। देखो इस हाई किया आप, सर डेल स्केलर क्वांटिटी है सर। हाई स्केलर क्वांटिटी सर ऊपर में डेल एक्स, डेल तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी नहीं है। डेल क्या है? ये तो डिफाइन किया हुआ डेल, जो वेक्टर फॉर्म में डिफाइन किया हुआ। देखो ये वेक्टर ऑपरेटर है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। डेल का मतलब क्या होगा? डेल मतलब वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, डेल का मीनिंग यही है। और
ग्रेडियंट का मतलब ये हो गया कि स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए ग्रेडियंट का यूज करते हैं। समझ रहे हो? देखो ये फाई क्या है, फाई इज स्केलर। ये डेल क्या है, डेल जो है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया, ये तुम्हारे क्वांटिटी बन गया गेट फाइव इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो गेट फाइव को हम लोग, गेट फाइव मींस दैट वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी स्केलर को। ठीक है, where phi xyz is a function, where phi xyz is a function of three independent variable means that is ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड, थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड ये टोटल डिफरेंशियल जो पढ़े हो वो डी फाई से हम लोग डिनोट करते हैं, इज गिवन एज। तो डी फाई क्या होगा, डेल फाई बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल फाई बाय डेल वाई इंटू डी वाई, डेल फाई बाय डेल जेड इंटू डी जेड। एक्चुअली ये टोटल डिफरेंशियल के आधार पर लिखा हुआ है डी फाई जो है। ठीक है, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डी फाई हैज गिवन। तो आप देखो हम लोग आई डेल फाई बाय डेल एक्स, जे डेल फाई डेल वाई, के डेल फाई डेल जेड, इसको एक सेट कर दिए, डॉट आई डी एक्स जे डी वाई के डी जेड वन साइड। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में किसको कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा बोल दो, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई डेल फाई बाय डेल एक्स को मल्टीप्लाई करो डी एक्स से, तो ये मिलेगा। ठीक है, आई डॉट आई क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, डेल फाई बाय डेल एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर है भाई, फिर इसको मल्टीप्लाई करो डेल्टा फाई बाय डेल्टा एक्स से, तो वहां पर क्या मिलेगा, आई डॉट के विल हैव जीरो, सो ओनली फॉर आई डॉट आई that is 1, so we have the result d del phi by del x into dx, ये मिलेगा। that is similar है भाई, del phi by del y into dy भी मिलेगा, and also similarly del phi by del x, del phi by del z into dz we have। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट करोगे तो मिलेगा। ठीक है, आप देखो ये जो वेक्टर क्वांटिटी बन गया, आई डेल फाई बाय डेल एक्स, जे डेल फाई बाय डेल वाई, के डेल फाई बाय डेल जेड, वी हैव डेल फाई लिखेंगे हम लोग, ये डेल फाई मींस दैट क्या हो गया, ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये क्या ग्रेडियंट ऑफ फाई हो गया। ठीक है, और आई डी एक्स जे डी वाई के डी जेड, इसको हम लोग लिखेंगे डी आर एज ए वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, आर देखो, आर वी हैव, देखो आर का वैल्यू क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसको डी आर जब लिखेंगे तो क्या होगा, देखो तो आई डी एक्स जे डी वाई के डी जेड, डिफरेंशिएट कर दिया तो मिलेगा ना। एनीवन स्टूडेंट? Yes, sir. ओके, so a dot b we have modulus of a and modulus of b into cos theta। ठीक है, a dot b we have modulus of a dot modulus of b into cos theta। ठीक है, however theta is the angle between the directions of del phi and dr। ठीक है, theta क्या है, theta is the angle between the directions of del phi and dr। if dr जो है, dr and del phi are in the same direction, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, then theta equal to 0, थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, सेम डायरेक्शन होगा तब थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो डी फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये डी फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा
del phi into dr बचेगा, ठीक है ना। The value of d phi is the greatest when theta equal to 0. It is the property of phi that gives the name of gradient of phi. Gradient of phi को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। gradient of phi समझ में आया कि नहीं आया? Anyone student tell me. सर फिर से बताइए ना सर। फिर से क्या कहाँ बताएंगे, बोलो किसी जगह समझ नहीं आया। सर फर्स्ट लाइन से सर। फर्स्ट लाइन क्या ये, इसको डेफिनेशन ग्रेडियंट। यस सर, हाँ सर वहीं से बताइए ना। हाँ एक्चुअली ग्रेडियंट जो बोल रहा, द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई इज डिफाइंड एज डेल फाई। इट इज रिटर्न बाय ग्रेड फाई, ग्रेड फाई इक्वल टू डेल फाई, ठीक है। तो डेल का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है डेल आई डेल बाय डेल एक्स जे डेल बाय डेल वाई के डेल जेड बाय डेल जेड इंटू फाई। फाई क्या है, फाई इज स्केलर, ठीक है। और डेल जो है डिफरेंशियल वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल, ये डेल का मीनिंग है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। डेल वी हैव आई डेल बाय डेल एक्स जे डेल बाय डेल वाई के डेल जेड बाय डेल जेड, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ फाई जो ग्रेड फाई जो है, ग्रेड फाई आर यूज इन ए यूज द कन्वर्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी एज एनी स्केलर। किसी भी स्केलर को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ग्रेड फाई का यूज करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। Okay, so next is normal and directional derivative, ठीक है। normal and directional derivative. What is normal? If phi x y z equal to c represent a family of surface of a differential of for different values of the constant c. On differentiating phi, we get d phi equal to 0, ठीक है। But on differentiating phi equal to we get d phi equal to 0. But d phi equal to देखो d phi हम लोग we know that d phi equal to क्या दिया, del phi into dr, ठीक है। d phi equal to del phi into dr already have, ठीक है। तो d phi equal to 0 हो जाएगा, तो क्या जाएगा del phi and dr equal to 0 हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो स्केलर प्रोडक्ट अप टू वेक्टर, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट अप टू वेक्टर del phi and dr being 0, del phi and dr are the perpendicular to each other। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होने से क्या हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। del phi और dr दोनों 0 हो जाए, इसका मतलब बोल सकते हैं कि del phi and dr are perpendicular to each other, where dr is the direction of tangent to the given surface. Thus del phi is a vector normal to the surface phi x y z equal to c दिया हुआ है, ठीक है। What is directional derivative? Directional derivative क्या है, देखो the component of del phi in the directions of a vector d is equal to the grade phi. d is called the directional derivative of phi in the directions of d, ठीक है। इन अदर वर्ड्स में डेफिनेशन को बोल सकते हैं हम लोग, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन is the projections of the gradient of the given function in that particular direction. For example, the directional derivative of the function phi is the direction of the vector u is del phi into u vector divided by modulus of u at any given point.
एग्जाम्पल पे आओ, एग्जाम्पल देखने से क्लियर हो जाएगा, बड़े डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है गिवन एग्जाम्पल, द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट इन स्पेस is given by capital T is equal to xy plus yz plus zx. Determine the derivative of t in the directions of the vector 3i minus 4k at the point 1 1 1. ठीक है, actual t have given xy plus yz plus zk zx. T already have. सो डेल टी मतलब ग्रेड टी, ग्रेडियंट ऑफ टी निकालो हम लोग। तो डेल का मीनिंग क्या है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है? डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल कैन बी डिफाइंड आई डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई के डेल जेड बाय डेल आई, ठीक है। और टी वी हैव देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड की। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से देखो we have I into y plus z, j into x plus z and k into x plus y we have. क्लियर है कि नहीं बोलो? Anyone student? Yes, sir. ये डेरिवेटिव क्लियर है कि नहीं बोलो? डेल्टा क्लियर है? Yes, sir. So directional derivative हाँ बोलो सर। वो लास्ट, हाँ फर्स्ट ऊपर सर। हाँ सर, वो लाइन कैसे बनाए हैं सर? नीचे वाला सर, सॉल्यूशन कैसे किए हैं लास्ट में सर? तीसरा लाइन सर, आई में, हाँ आई फर्स्ट वाई प्लस जेड फर्स्ट प्लस जे फर्स्ट एक्स प्लस जेड, ये वाला सॉल्यूशन कैसे किए सर? सर नीचे उसका एक लाइन, वो सॉल्यूशन हमको नहीं समझ में आ रहा है। हाँ सर वही सर, हाँ वही लाइन बता दीजिए केवल। ये इसको, हाँ सर वही लाइन केवल। इसको देखो, ये लाइन समझ में आ रहा है? ये लाइन हाँ सर वो आ गया, नीचे वाला नहीं आ रहा। ओके। तो इसको मल्टीप्लाई करो ना, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड के को मल्टीप्लाई करो। ये होल फंक्शन को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? डेल बाय डेल एक्स डिफाइन क्या कर रहा है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसको करोगे? इसको करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर वाई प्लस जेड नहीं मिलेगा, बोलो। अच्छा हाँ सर हो गया। और जे भी देखो, यस सर। डी है यहाँ डेल बाय डेल वाई, डेल्टा इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई किसको करोगे? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड के जेड एक्स को मत करो तो ये नहीं मिलेगा, और ये भी मिलेगा तुमको, ठीक है ना। यस सर। डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट 111, ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट 111, ठीक है। तो क्या होगा? 2y प्लस 2z प्लस 2k कैसे मिला बोलो तो? इस समझ में आ रहा कि नहीं? तो 2y प्लस 2j प्लस 2k। नहीं सर। एक्चुअली डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे एट पॉइंट 111 पे, ठीक है। मतलब कि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, ठीक है। इस यहाँ पर उस पॉइंट को पास कराओ, इस पॉइंट को पास कराओ, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसका निकालोगे तो यहाँ पर नहीं होगा y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, तो क्या होगा? 2y नहीं होगा। यहाँ पर सिमिलर है, x इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, दैट इज 2j, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, दैट इज 2k। यस सर। So directional derivative at point 111 in the directions of इस डायरेक्शन में हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे 3i माइनस 4k। देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट 111 इन द डायरेक्शंस ऑफ 3i माइनस 4k, ठीक है। इसका मतलब ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट ये निकला 2y प्लस 2j प्लस 2k डॉट
ये वेक्टर 3i माइनस 4k डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर का मीनिंग क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 होगा कि नहीं होगा बोलो? समझो एनीवन? यस सर। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला देखो, डेल फाई इंटू डॉट यू वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ यू। देखो तो यहाँ पर देखो यू वेक्टर क्या है? 3i माइनस 4k और मॉडुलस ऑफ यू क्या है? मॉडुलस ऑफ यू मतलब ये यू वेक्टर हम इसको कंसीडर करेंगे तो मॉडुलस ऑफ यू करेंगे तो ये नहीं मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16। बोलो। हाँ सर हो गए सर। ठीक क्लियर है? ठीक है। यस सर। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग आते हैं एज सिमिलर वे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर फंक्शन fx y z वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। देखो स्केलर फंक्शन में क्या होता है? वो डायरेक्शन नहीं देगा, मतलब आई जे के नहीं देगा, ठीक है? स्केलर में देखो, स्केलर में कभी डायरेक्शन नहीं रहता, हमेशा मैग्नीट्यूड रहता है, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर एट द पॉइंट a equal to 1 minus 1 in the directions of the line AB पे निकलना है। हमारे B has the coordinate 3 to 1, ठीक है? तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसके बाद हम लोग ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालो। एफ जो दिया हुआ डेल एफ, डायरेक्शनल डेरिवेटिव डेल एफ निकालो। तो डेल एफ निकालोगे तो क्या होगा बोलो? आई जे डेल जे बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड इंटू एक्स का पास 2x y प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है? तो 2xy वी हैव, इसको पार्शियल डेरिवेटिव करो, ठीक है? डेल बाय डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड स्क्वायर को पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो 2x प्लस वाई इंटू वाई मिलेगा। इसको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो जे में इसको मिलेगा एंड जेड को करोगे तो ये मिलेगा। क्लियर है कि नहीं बोलो? एनीवन स्टूडेंट? यस सर। ओके, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 पे निकालना है। ये जो 1 ये जो पॉइंट दिया रहा है 1 पे निकालना है, ठीक है? तो क्या होगा? जहां जहां x है वहां पर 1 हो गया, y की जगह क्या होगा? -1, z के इक्वल टू -1 हो जाएगा। देखो ये वैल्यू मिलेगा i j -2 के, हाँ? यस सर। ओके, अब हमको निकालना है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट जो निकालना है a इक्वल टू 1 -1 पे इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ए बी। द डायरेक्शंस ऑफ द लाइन ए बी निकालना पड़ेगा। तो लाइन ए बी कैसे निकालोगे? ए बी लाइन देखो, ए बी लाइन को निकालोगे तो क्या बी माइनस ए, ठीक है? तो बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 3 2i दैट इज 3i प्लस 2j प्लस के माइनस ए क्या दिया हुआ है? देखो i माइनस जे माइनस के कर सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 2i प्लस 3j प्लस 2k मिलेगा सर बी माइनस ए का है? हाँ बी माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। हाँ, तो एक्चुअली हमारे डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो निकालेंगे एट पॉइंट, इस पॉइंट पे निकालेंगे 1 पे इन द डायरेक्शंस ऑफ द लाइन ए बी। तो लाइन ए बी पे निकालना है, तो लाइन ए बी का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा ना, ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी इक्वल टू दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ तो क्या होगा? बी माइनस ए। सर वेक्टर ए में तो घटा सकते थे ना वेक्टर बी को? वेक्टर में क्या? वेक्टर ए में वेक्टर बी को घटा सकते थे? नहीं कर सकते ना। वेक्टर डेफिनेशन में बोल रहा है
वो तो जो लाइन हम लोग ए बी निकालेंगे, इसे वेक्टर में 1 by 1 पॉइंट पे फॉर्मूला दिया हुआ है ना, ए बी लाइन जो निकालेंगे वो बी माइनस ए पे निकले, बी माइनस ए होगा, ठीक है। अगर तुम बोलोगे ए माइनस बी हो जाएगा ना, ए माइनस बी करोगे तो यहाँ पर डायरेक्शन यहाँ पर माइनस हो जाएगा तुम्हारा, ए माइनस बी करोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो ये लाइन बन गया। तब द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 -1 -1 इन द डायरेक्शंस ऑफ द लाइन ए बी। तो क्या हुआ, तो हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट 1 -1 -1 पे जो है क्या निकला, आई जे -2k लिख दिए। डॉट यू वेक्टर क्या बन गया, यू वेक्टर बन गया तुम्हारा 2i + 3j + 2k लिख दिए। और मॉडुलस ऑफ यू कर देंगे तो क्या होगा, इसका मॉडुलस करोगे तो क्या होगा, 4 + 9 + 4 होगा। इसे सॉल्व कर देंगे तो मिल गया तुम्हारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, समझ में आ गया एनीवन स्टूडेंट? यस सर, आ गया। आज के लिए इतना ही, वी लेफ्ट द मीटिंग। ओके सर पीडीएफ भेज दीजिएगा ना सर। ओके